Hello, good evening. Okay. Hope you all have done average exercise. Very good. Have you faced any problem, in any question? Usually, I have been not getting any question from your batch, any of the students. So I don't know. Or if you face any problem, acha, post it on Telegram post. Okay, don't worry. Otherwise, you can send my number is today's topic is ratio and just second. ओके किसी भी टाइम किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो आप मुझे सेंड कर दो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा ओके राइट नाउ टुडेज टॉपिक इज रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक ओके वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यस बेटा माय नंबर इज 9979 6006 okay no. Wait, beta, wait. Topic is ratio and proportion. Okay. What is the meaning of ratio? What is the meaning of ratio? Comparison of two numbers. Okay. Comparison means beta what? Plus or minus? Comparison means plus or minus? Addition or subtraction? Comparison in lowest form. Beta Sakshi, I am asking meaning of comparison. Meaning of comparison. Yes, number that uses division. Okay, now.
Beta, total there are only 48 questions in mathematics. Only 48 questions. Okay. Start from addition, subtraction, multiplication, division equals to. Okay, now. So sign of ratio is this one. Okay. This is similar to which sign? Similar to which sign? Division. Similar to division. Means ratio means division. Ratio means division. Learn one thing from today. Meaning of ratio means division. Right now. Suppose find the ratio. Find the ratio of 36 and 48. Option A is 36 is to 48. B 18 is to 24. C 9 is to 12. D all of the above. E none of these. Okay. Man, Krusi and Param, Dhanil also have written E, remaining all D. Okay, now. One important thing, never forget, okay, never. The ratio should always okay. Ratio should in simplest form. Ratio should in simplest form. Okay? No. So only 3/4. Only 3/4. Okay. 36 upon 48. Right? 36 divided by 2. 18 upon 24. No, wrong. 18 divided by 2. 9 upon 12. Again wrong. 9 by 3. 3/4. Correct answer. Okay. So ratio जब भी find करना हो, whenever find the ratio of any two numbers, three numbers, four numbers, convert into simplest form. Convert into simplest form. Okay. Clear? Okay. Now find the ratio of 50 and 100. One is to 2. Very good. Very good. Now find the ratio of 2 into 3 into 4 is to 3 into 4 into 5 is to 5 into 6 into 7. Is it a fine? Four is to 10 is to 35. Okay, very good. 4, 10, 35. Okay. 4, 10, 35. Okay.
4, 10, 35. Good. Now, total there are how many terms? How many terms? First, second, and third. Total 3 terms. Common means common in all 3 terms. Common in all 3 terms. Not 2 terms, not 4 terms. Total 3 terms. So common in all 3 terms, right? No. So 3 common, 3 2s are 6. Okay. So 4 into 2, 8. 5 into 4, 20. And 10, 70. 2, okay, very good, Norman. Again, 2 also common. So 2 2s are 4. 2 10s are 20. 2 35. So correct answer 4, 10, 35. Okay. 4, 10, 35. समझ में आ गया? No. Next, find the ratio of 2 into 3 into 4 into 5 is to 5 into 6 into 7 into 8 is to 8, 9, 10 and 12. Yes, आंसर बताओ. One 14, 17, 1 14, 36. Okay, चेक कर लेते हैं. Don't worry. 2 3 are 6. 2 4 are 8. Okay. 5 beta 5 5 2 are 10. 3 4 are 12. Okay. So 4 is to अच्छा again cancel हो रहा है. Okay. 4 2 are 8. 4 cancel. Means answer 1 is to 14 is to 72, right? 1 is to 14 is to 72. आपका सेम आंसर है 1 14 72. यस नो बेटा, ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ऑफ 10 करोड़. ये क्वेश्चन है 2 3 4 5 into 5 6 7 8 into 8 9 10 11. ठीक है ना. क्वेश्चन ऑफ 10 करोड़ रुपीज. आपने कौन बनेगा करोड़पति सुना है कभी? एपिसोड देखा है आपने? यस बेटा. हाईएस्ट प्राइस कितना होता है? यूजुअली हाईएस्ट प्राइस 7 करोड़. बट दिस क्वेश्चन ओके इज ऑफ 10 करोड़ रुपीज. हाउ? हाँ, कौन देगा? सही बोला है आपने. मन कौन देगा? ठीक है ना.
क्लैट नाम सुना है आपने? क्लैट लॉ का एग्जाम है क्लैट, यस। एंड जीएनएलयू सुना है? जीएनएलयू, यस, वेरी गुड। क्लैट 2014, ओके, आप प्रीवियस पेपर चेक कर लेना। नाउ देयर वाज वन क्वेश्चन, ओके, उसमें ये इक्वेशन बन रहा था, ओके, 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11, ठीक है ना। One student was selected for GNLU, right? Okay, she did not convert into simplest form. Okay, directly she has written answer 5 for the 20 into 3, 60 into 2 120, okay, 120 into 14 and 120 into 72. ठीक है, तो मुझे ये बताओ, if you write this one, then answer would be right or wrong? Wrong होगा, very good, no. Same, इस बच्चे का भी आंसर रॉन्ग हो गया, राइट, आंसर रॉन्ग हुआ। अगर रॉन्ग आंसर है, if your answer is correct, then you get 1 mark, right? And if your answer is wrong, then score minus what? Minus 0.25, minus 0.25, right? Minus 0.25. Now, then what is the difference between 1 mark and minus 0.25 mark? No. Difference between 1 and minus 0.25. Very good, hey, Sri, very good. 1.25 marks. 1.25 marks. Okay, 1.25. But the difference between 1 and 2.25 is 0.75. But difference between 1 mark and minus 0.25 is 1.25 mark. Okay? No. In that particular year, no, cutoff of GNL was 110.25. 110.25. Okay, now. And next college cutoff was, okay, 110.5. Okay, जिसको 110.5 आया, उसको ऊपर के कॉलेज मिला, एंड जिसको 110.25 कटअप आया, स्कोर आया, he or she got GNLU एग्जाम, GNLU कॉलेज। ओके, सपोज किसी को 100 मार्क्स आता है, राइट, देन यू गॉट कॉलेज X एंड 99.75 कॉलेज Y, ऐसा पॉसिबल है? यस, नो। तो 110.25 के ऊपर उसको मिल रहा था नालसार हैदराबाद, ओके, एंड 110.25 पे उसको मिल रहा था बेटा, राइट, GNLU। 110.25 GNLU, ओके ना। अब बताओ, अगर आपका GNLU में सिलेक्शन हुआ एंड नालसार सिलेक्शन हुआ, दोनों कॉलेज में डिफरेंस है, नालसार एंड GNLU। नालसार इज हैदराबाद, GNLU इज गांधीनगर, ठीक है ना। स्टूडेंट का 2018 में 19 में वो कॉलेज से पास आउट हुई है स्टूडेंट, एंड उसका जो पैकेज लगा, ओके, दैट वाज 15 लाख रुपीस। इस पैकेज पे वो गई है स्टूडेंट। नाउ अगर वो नालसार में जाते ये सेम स्टूडेंट, तो कितने का पैकेज लगता उसको? अगर आपको, मैं GNLU से पास आउट होता हूँ, मुझे 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो नालसार में कितने का मिलेगा? अगर आप
गुजरात कॉलेज से कोई एग्जाम पास करते हो, मोर देन 50 lakhs, हाउ मच बेटा कनिका, हाउ मच, एनी आइडिया? नालसार मिनिमम 25 lakhs। ओके, now बताओ, GNLU में 15 lakhs का लगा और नालसार में अगर वही स्टूडेंट हो तो मिनिमम 25 lakhs का पैकेज होगा, राइट? मुझे ये बताओ डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस कितने का हुआ? 10 lakhs का, 10 lakhs रुपीज डिफरेंस है। नो, एट द एज ऑफ 23 जब आपको जॉब लगता है तो 23-24 ईयर्स के आप होते हो, राइट? नो, आप जॉब कब तक करोगे? कब तक करेंगे? हाँ देखते बताओ जॉब कब तक करेंगे आप? Usually बेटा 60 years, usually 60 years, means 37 years job, 37 years, okay। एंड आपके जॉब में कितने परसेंट का ग्रोथ होगा? सैलरी में, सैलरी में कितने परसेंट का ग्रोथ होगा? हाउ मच परसेंट यूजुअली एवरी ईयर? कॉर्पोरेट सैलरी में यूजुअली कितने परसेंट का ग्रोथ? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो यार, पता नहीं क्यों। नहीं, नो साथी, 5% का नहीं होता है ग्रोथ, ठीक है? 3 नो, नो, मिनिमम 10% ग्रोथ होगा, मिनिमम 10%। बट आप पूरे ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स देखोगे आप तो एवरेज ग्रोथ कहीं ना कहीं 15% का बनता है, राइट? तो 15% ग्रोथ हो गया आपका। नो, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा टॉपिक, राइट, सॉल्व करना है क्वेश्चन। प्रिंसिपल इज 10 lakhs रुपीज, ओके, टाइम 37 years, okay, rate of interest 15%, okay, find amount, you will get around 10 crore rupees, you will get around 10 crore rupees, okay। तो ये जो 10 करोड़ उसने लूज किया, तो क्यों लूज किया उसने? बताओ मेरे को, 10 करोड़ रुपीज उसने क्यों लूज किया? बिकॉज ऑफ रेशियो। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन में उसने मिस्टेक किया और वो 10 करोड़ रुपीज लूज कर गई। तो समझ में आता है आपको एक क्वेश्चन का कॉस्ट कितना होता है? एंड ये मैं फैक्ट शेयर बता रहा हूं आपको, जो हो चुका है हमारे आईक्यू के स्टूडेंट के साथ, तो वो मैं डेटा आपको बता रहा हूं। एंड ऐसे तो कितने स्टूडेंट होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। आपने सुना होगा जनरली 2-3 एग्जाम में, मेडिकल में सुनोगे आप कि 0.25 मार्क्स से रह गया, सुना है आपने कभी? 0.25 मार्क्स। एंड सीए के एग्जाम में आप जनरली सुनते होंगे कि 0.25 मार्क्स से रह गया। वो बेसिकली 0.25 मार्क्स नहीं था, वो एक क्वेश्चन का मिस्टेक है आपका, मिस्टेक ऑफ वन क्वेश्चन। एंड एक को बॉर्डर लाइन पे ऑलवेज एवरी ईयर कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर फंसता है बॉर्डर लाइन पे, एवरी ईयर कोई ना कोई एक बच्चा फंसता होगा जहां 120 पे सिलेक्शन होता है एंड आपका स्कोर 119.75 है। हाँ, डेफिनेटली सैड हो गया, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपके एग्जाम में आ जाए, याद कर लेना कि ये 10 CR का क्वेश्चन है, ओके। एंड आप मिस्टेक नहीं करोगे।
क्लियर? ओके, नाउ अभी आते हैं, बिकॉज रेशियो प्रोपोर्शन इज वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एंड वो दोनों आप जानते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, 100 rupees divided into two parts where ratio is 2:3. बताओ आंसर। $40 and $60. Very good. And second question, beta, A is to B is 1:2 and B is to C is 2:3. Find A is to B is to C. तो ये टू टाइप से क्वेश्चन ही पॉसिबल है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, राइट। टॉपिक काफी इजी है, तो मैं आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, आपका समझ में आ गया। सपोज आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन देखा, A 48, B 36, find the ratio of A is to B. Second question, A is 1/2, B is 1/3, find A is to B. Find A is to B. Three is to Param, 3:2. Okay, very good. Now 1/2, 1/3, बड़ा easy method है। Either LCM of 3 and 2, LCM of 3 and 2, 6. No, so 2 3 are 6 and 3 2 are 6. So 3:2. फर्स्ट में नहीं बेटा, 4:2 नहीं होगा। अच्छा फर्स्ट का बता रहे हो, ओके फाइन, फर्स्ट करेक्ट है, ओके ठीक है ना। आंसर 3:2। नो, और सेकेंड मेथड देख लो, सेकेंड मेथड आप अप्लाई करना, दैट इज मच सिंपलर देन फर्स्ट वन। 1/2, ये ध्यान देना आप, 1/2 is to 1/3. Okay, now first numerator and remaining denominator. So 1 into 3, numerator or remaining denominator. So 3:2. Okay. One more example, like 2/3 is to 4/5 is to 1/2. Okay. Basically you can say cross multiplication right now. So better 2 into 5 into 2. Okay. 1 numerator, remaining denominator. So 2 into 5 into 2. The numerator and remaining denominator. So 3 into 4 into 2. And third, 1 into 5 into 3. 1 into 5 into 3. So 5 4 are 20. 12 into 2 is 24. And 15. 20, 24 and 15. Okay. समझ में आ गया? Now third question. Find the ratio of 2/5 is to 4/7 is to 3/8 is to 5/6.
यस बेटा बताओ आंसर। ओके परम। ओके करेक्ट है 336 480 315 and last one 700। ठीक है, आप सबने जो ये मैंने रेड पेन से लिखा है आपने वैसे ही लिखा है, चेक कर लो। यस मिस समझ में आ गया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 2/3 is to 5 is to 0.2। Ten 75 and see okay, so can I write 5/1 and 2/10? No. So 2 into 1 into 10 is 20, 15 and 10 150 and 6, common term 2 10 75 and 3। okay, next question, 1/2 equals to 1/3 equals to 1 by, or a लिख दो, a/2 b/3 c/4। okay, a/2 equals to b/3 equals to c/4। find a is to b is to c। if a/2 equals to b/3 equals to c/4, then find a is to b is to c। 643, okay। Okay, 643, okay। No beta, answer is 2 is to 3 is to 4। a/2 is to b/3 is to c/4। can I assume this equals to x? can I assume this equals to x? okay, so a equals to 2x, b equals to 3x and c equals to 4x। so ratio is 2 is to 3 is to 4। okay, समझ में आ गया? there are major difference between these two questions। first, find the ratio of
1/2 is to 1/3 is to 1/4, and find ratio of A is to B is to C if A/2 B/3 is C/4. ओके, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना आप। ओके, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है इन क्वेश्चन सेकंड, इन फर्स्ट रेशियो का साइन होगा। समझ में आ गया? यस बेटा वन, whenever there is equals to sign, have to take denominator as ratio. Okay, हाँ, फर्स्ट आंसर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होगा। ठीक है, तो इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में बेसिक रेशियो के। ठीक है, खुशबू आप क्लास में हो, मलय क्लास में हो बेटा, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। रुचा क्लास में, विश्वा, यथार्थ, ओके, आंसर तो बेटा समझ में आ रहा है खुशबू? ओके, नो, तो आंसर बताओ बेटा, समझ में आ रहा हो तो आंसर बताओ। नो, नेक्स्ट। About this type 1 question, A is to B is 2 is to 3. Total amount is 100 rupees. Total amount 100 rupees. Okay. Find the share of A and B. $40 and $60. There are two methods. 2x plus 3x is 100. So x equals to 20. So first number means A equals to 20 into 2, and second number 20 into 3. 40 and 60. And second method, okay, A equals to, A is 2, so 2 upon 2 plus 3 into 100. B equals to 3 upon 2 plus 3 into 100. Okay, so first value 40, second value 60. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ओके बेटा, वेरी गुड। नो मन, मैं क्या करता हूँ कभी कभी, मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो जब बहुत हंगामा करता है ना तो मैं म्यूट कर देता हूँ।
ठीक है, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके, इसके लिए मैं अगर म्यूट कर रहा हूँ समझ लो वो हंगामा कर रहा है। 1/2 is to 3/1 is to 4/10. No. तो रेशियो क्या होगा? 20:60:8 means 10:30:4. ओ 5 होगा ना, सॉरी 10 means 5:30:4. ओके, तो ए का अमाउंट फाइंड करना है, सो 5/39 into 39. ओके, क्लियर? समझ में आ गया? नो, टाइप 2 क्वेश्चन, if A is to B, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें, टाइप 1 नहीं, वन मोर क्वेश्चन. If A is to B is 2:3, sum of their square $700. Okay, find product of the number. इसको 1300 कर लो, 1300. Answer 600. Okay, very good. Okay, answer 600. Very good. No. 2x squared plus 3x squared is 1300. So 4x squared plus 9x squared is 1300. So x squared is 100. X equals to 10. Okay. So number 20 and 30. Product 600. Okay. Next question, type 2. A is to B is 2:3 and B is to C is 3:4. Find A is to B is to C. Two, 3, 4. Okay. वेरी गुड. ये देखो एक कितना बड़ा इंजीनियर है बच्चा, देखो आप. देखो ऐसी कलाकारी आप. देख रहे हैं? देखो इसकी इंजीनियरिंग. एक बच्चे का आई जो होता है ना, उससे बदमाशी टपकती है ना, देख के शैतान लगता है बच्चा, वो है ये. इसमें सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. पहले आपको एक और मैं एग्जांपल सॉल्व करने दे रहा हूँ क्वेश्चन. A is to B is 1:2. B is to C is
4:5. C/D is 2:3, and D/E is 5:4. Find ABCDE. बताओ आंसर। 4, 8 परम लिखा 4, 8, 10, 15, 12। ओके बेटा, कहीं का आप बताओ जी या मन, जिसने आंसर दिया था प्रीवियस क्वेश्चन का। साक्षी, करेक्ट आंसर होगा बेटा 4, 8, 10, 15 एंड 12। क्या आंसर है? 4, 8, 10, 15, 12। तो सॉल्व करने का बड़ा इजी मेथड है, एकदम इजी मेथड समझाता हूं मैं। इसके बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं सॉल्व करने के। ओके, जैसे मन आपने सॉल्व किया है तो ऑलवेज गो थ्रू बाय योर प्रॉपर मेथड, जिससे आप जानते हो। ठीक है, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे मेथड से। बट जो स्टूडेंट नहीं जानते हो आप, ठीक है, ऑलवेज फॉलो माय मेथड। ओके, ये क्वेश्चन अगर आप अपने मेथड से सॉल्व कर लिया है आपने, तो स्विच करना नहीं है आपको। मन आप अपने मेथड से सॉल्व करना। ओके, नो नो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस कोई भी क्वेश्चन दिया मैंने, A/B is 2:3 and B/C is 4:5। ठीक है ना। तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं यहाँ पे? टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 3, A, B and C। ठीक है, जैसे जो मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया था उसमें अल्फाबेट कितने थे? ABCDE थे अल्फाबेट। ABCDE, A, B, C, D एंड E था अल्फाबेट। जितने अल्फाबेट हैं उतने कॉलम क्रिएट कर लो। ठीक है नो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन फर्स्ट रो वैल्यू ऑफ A एंड B is 2 and 3 एंड सेकेंड रो वैल्यू ऑफ B and C is 4 and 5। ये दिया हुआ है। ओके नो। इन क्वेश्चन सेकेंड बताओ AB का वैल्यू कितना है? AB 1 and 2। okay, BC, B and C 4 and 5, C and D 2 and 3 and D and E 5 and 4। वेरी गुड। नो, बस यहां तक समझ में आ गया पैटर्न जो मैंने लिखा है ना। अभी क्या करना है? वेरी इजी मेथड। नो, फर्स्ट रो में ABCDE में वैल्यू ऑफ A एंड B आर गिवन, C, D एंड E आर नॉट मेंशन्ड, राइट? नो, तो क्या करना है आपको? राइट मोस्ट वैल्यू कौन सा है? 1 और 2 में राइट मोस्ट वैल्यू 2। तो उसके राइट साइड में जितने भी कॉलम होंगे सब में 2 लिख दो। 2, 2, 2। ठीक है, सेकेंड रो के राइट मोस्ट नंबर क्या है? राइट मोस्ट नंबर 5 एंड 5 लिख दो। थर्ड रो का राइट मोस्ट नंबर 3 लिख दो। ठीक है, अभी आते हैं लेफ्ट साइड पे।
फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, ए बी सी डी चेक कर लो। सेकेंड रो में लेफ्ट साइड का नंबर कौन सा है? 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। थर्ड रो में लेफ्ट साइड नंबर 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। नेक्स्ट रो में 5, 5 एंड 5, समझ में आ गया आपको? चेक करो। जिस पॉइंट के राइट साइड में कोई भी बॉक्स ब्लैंक हो वो नंबर लिखते चलो। राइट साइड को राइट साइड एक्सटेंड करो, लेफ्ट को लेफ्ट एक्सटेंड करो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं इसमें, यहां बताओ सी का वैल्यू क्या बनेगा? सी का वैल्यू 3 एंड सेकेंड रो में ए का वैल्यू 4। वेरी गुड, बस सॉल्व हो गया। a equals to 2 into 4, that is 8. b equals to 3 into 4, 12, and c is 3 into 5, 15. Answer 8, 12 and 15. Okay, no, this one a का वैल्यू क्या होगा? 1, 4, 2, 5. So 5 to the 10, 10 4 the 40. B is 10 to 80, 100, 150 and 80. देखो ये बन रहा है वैल्यू। सो कॉमन टर्म 10 दिख रहा है। So 4 is to 8 is to 10 is to 15 is to 8, right? ये आंसर बनेगा आपको। ओके, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना अदर देन 10? लास्ट में 120 होगा बेटा, चेक कर लेते हैं। 5 गुना 10 30, यस 120 होगा। ओके, 120 to 12. सपोज इसी में क्वेश्चन दे, फाइंड रेशियो ऑफ a is to d, then not a is to e, find ratio of a is to e. Very good, 1 is to 3, ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a is to b 1 is to 2, a is to b 5 is to 4, find a is to b is to c is to d. Okay. No, 5 10 देखो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं सबके। नो, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पे लेफ्ट साइड नंबर अल्फाबेट पे ध्यान दो आप। अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं है, ए बी बी सी एंड सी डी होना चाहिए। ओके, अब क्या लिखोगे बेटा? ए, कोई बात नहीं मानो, तभी तो मैंने दिया था क्वेश्चन। ए बी सी एंड डी, फर्स्ट इज 1 2, बी एंड सी क्या होगा? 4 एंड 5 होगा, चेक करो। एंड सी डी 3 एंड 2, 3 एंड 2, राइट? नो, सो अभी लिखो यहाँ पे 2 2
5, 4, 3 and 3. Okay. So A equals to 12, B equals to 24, C equals to 30 and D equals to 20. Common term 2. So 6, 12, 15 and 10. 6, 12, 15 and 10. समझ में आ गया? रुका बेटा, आप क्लास में हो? प्रेजेंट हो क्लास में? आप कोई भी आंसर नहीं दे रहे हो, पता नहीं चल रहा है मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। मानुषी, आपका तो आंसर आ रहा है, आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एंड अलौकिका मेहता, आप बेटा क्लास में प्रेजेंट हो? आई थिंक आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या ये? यस, समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है, तो आंसर दिया करो, मुझे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अच्छा, ये क्वेश्चन ना दिस वन एनपैट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड मैक्सिमम बच्चों ने क्या मिस्टेक किया था, उन्होंने अल्फाबेट को देखा ही नहीं था। इसके लिए ध्यान रखना कि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, A is to B is 1:2, B is to C is 2/3 is to 3/4, and C is to D is 1:2/3. Find ABCD. Four, 8, 9, 6. Okay. ओके, आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो। देखो बड़ा, अगर आपने ऐसे लिखा, यहाँ पे कैंसिल कर लो। देखो 2 4 जा 8, ओके, 2 and 2 कैंसिल। नो, 3 3 3 3 3 जा 9 कैंसिल। ओके, नाउ सो 4:8:9:6 ये आंसर है। 4 8 9 6। Four, 8, 9, 6. No. Next question. 2A equals to 3B equals to 4C.
Find A is to B is to C. रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है। नो, देखो ये सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखना आपसे। 2A equals to 3B. So A is to B is how much? A is to B 3 is to 2, and 3B equals to 4C. So B is to C, 4 is to 3. पहले चेक कर लो। नो, so ratio is 12 is to 8 is to 6, means 2 common 6 4 3 इसका आंसर आएगा 6 4 3। ओके, सेम आया, वेरी गुड। 6 4 and 3। ओके, और भी इजी मेथड से करना हो आपको तो दिस इक्वल्स टू k एज्यूम कर लो, तो A is k by 2, B is k by 3 and C is k by 4. Okay, so k by 2 is to k by 3 is to k by 4. So 12 is to 8 is to 6, इससे भी आ जाएगा आंसर। ओके, 12 is to 8 is to 6, समझ में आ गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज प्रपोर्शन। What is the meaning of proportion? आप लोग कभी स्कूल में कोई भी स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठा है कभी? सब फर्स्ट बेंच पे ही बैठते हैं ऑलवेज। अच्छा, तो जब अपना टाइम पास करना होता है तो एक गेम खेलते थे। यथार्थ ने अभी आंसर दिया फाइनली, वेरी गुड। ऐसा एक गेम खेलते थे, मैच द डॉट्स। ओके, नो। तो बेटा ये जो मैच द डॉट्स खेलते हो ना, वही टॉपिक प्रोपोर्शन है। बेसिकली आप वो गेम नहीं खेलते हैं, लास्ट बेंच वाले का भी गेम नहीं खेलते हैं, वो तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, समझ गया? वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। तो देखो ये जो आप गेम खेलते हो ना, ये आपको पता नहीं था, यही प्रोपोर्शन गेम था। ओके, तो proportion means equals to, proportion means equals to, suppose मैंने लिखा 2:3 proportion 4:6. okay, means 2/3 is 4/6, 12 equals to 12। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? 2 3 4 6 आर इज इन प्रपोर्शन, 2 3 4 and 6 आर इज इन प्रपोर्शन। समझ में आ गया? अगर ये इक्वल नहीं आता हो, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं हो, लाइक 2 3 4 7, 2 3 4 7, मैं पूछता हूं आपसे आर इज इन प्रपोर्शन, तो 2/3 इज 4/7, तो 14 इज नॉट इक्वल टू 12। तो आंसर क्या होगा आपका? नो। ओके, तो नो। मुझे ये बताओ प्रपोर्शन के लिए मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए? और प्रपोर्शन कितना वैल्यू होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम वैल्यू 4। वेरी गुड प्रणव। नो, तो
फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ओ भाई 2, 3 and 4. Find the fourth proportion of 2, 3 and 4. तो आप क्या लिखोगे बेटा, 2:3 proportion 4:x. So 2/3 is 4/x. X equals to 6. Okay. ओके, आपने क्या क्वेश्चन पूछा बेटा मानुषी, चेक करने दो मेरे को। प्रपोर्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जो इज इक्वल टू के दोनों साइड ना सेम वैल्यू होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए, दैट इज प्रपोर्शन। जनरली प्रपोर्शन वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रपोर्शनेट होता है, ठीक है। जो कॉलेज आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो प्रपोर्शनेट होता है। आपका जितना स्कोर है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सिलेक्शन होता है। जो लेफ्ट साइड होगा ना, जो LHS है वही RHS है, दैट इज प्रपोर्शन, ठीक है। आप सुनते होंगे जनरली बोलते हैं कि जैसे जो मेडिसिन है, मेडिसिन का डोज प्रपोर्शनेट टू वेट होता है, कि आपका कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का डोज होता है, राइट। ओके, जैसे आपने स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, आपका जो स्पीड है कार का, जो आपका स्पीड होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस के प्रपोर्शन होता है, ठीक है, डिस्टेंस के प्रपोर्शन होगा, ठीक है। आप अगर ज्यादा स्पीड करोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, ठीक है। स्पीड लेस करोगे तो लेस डिस्टेंस कवर करोगे, ओके। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और इसके अलावा कोई मुझे नहीं दिखता है इसका यूसेज, ठीक है, प्रपोर्शन का। no. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2, 3 and 4, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज, राइट, कि ऑर्डर ऑफ 2, 3, 4 चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा लकी नंबर 4 है तो मैं पहले 4 लिखूंगा, देन 3, देन 2, ऐसा नहीं लिखना है, ये ऑलवेज रॉन्ग हो जाएगा। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में आप फाइंड करोगे, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा मीन प्रपोर्शन। फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ of 4 and 16, 4 and 16। तो मीन का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? एवरेज और मिडल वैल्यू, बेसिकली एवरेज इज मिडल वैल्यू, एवरेज इज मिडल वैल्यू, राइट। जैसे मैंने एवरेज फाइंड किया 1, 3, 5, एवरेज मिडल वैल्यू है, तो मीन मीन्स दैट इज मिडल वैल्यू, राइट। नो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज आपको प्रपोर्शन के लिए टोटल 4 नंबर्स होने चाहिए, नो, तो 4:x proportionate x:16, so 4/x is x/16, so x square is 64,
So x is square root of 64. That is beta plus minus 8. That is plus minus 8, not only 8. किसी एक बच्चे ने only 8 लिखा है. I think परम आपने लिखा है, right? परम ने लिखा था. हाँ बेटा प्लस माइनस 8 लिखोगे इसमें. प्लस 8 भी पॉसिबल है और माइनस 8 भी पॉसिबल है. समझ गए? ओके नाउ एक किसने लिखा है 4 4 4 16. वो क्यों लिखा है बेटा आपने? मेन प्रपोर्शन जब भी होगा तो आप ऐसे फाइंड करोगे. ठीक है, चलो एक को फाइंड करो. फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 32 and 128. अरे वाह, वेरी गुड परम, वेरी गुड. लगता है पहले ही तूने कैलकुलेट कर रखा था बेटा. वेरी गुड. आंसर इज प्लस माइनस 60. ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को? एंड लास्ट एंड इंपोर्टेंट इज थर्ड प्रपोर्शन. थर्ड प्रपोर्शन याद रखना, मैथ्स के अंदर ना टोटल 3 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं. मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स. फर्स्ट इज थर्ड प्रपोर्शन, सेकंड इज एवरेज स्पीड, and third is co-prime. Okay, थर्ड प्रपोर्शन में थर्ड का कोई मीनिंग नहीं है. एवरेज स्पीड में एवरेज का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, एंड को प्राइम में प्राइम का कोई मीनिंग नहीं है. समझ में आ गया? ये 3 वर्ड याद करके रखो आप. थर्ड प्रपोर्शन, एवरेज स्पीड एंड को प्राइम. एंड डेफिनेटली आप मिनिमम 1 क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम आपको मिलेगा फ्रॉम दिस 3 टॉपिक्स. ओके, थर्ड प्रपोर्शन, एवरेज स्पीड एंड को प्राइम. नाउ थर्ड प्रपोर्शन, find third proportion of of 4 and 16. जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो इसका मीन प्रपोर्शन फाइंड कर लेते हैं. ओके, जबकि थर्ड प्रपोर्शन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मीन प्रपोर्शन. टोटली डिफरेंट. नाउ थर्ड प्रपोर्शन का इक्वेशन आप क्या लिखोगे? 4:16 proportionate 16:x. 4 16 16x. ओके, जो सेकेंड नंबर है वो थर्ड पे रिपीट करेंगे एंड फोर्थ फाइंड करेंगे. सेकेंड नंबर रिपीट ऑन थर्ड एंड फाइंड फोर्थ वन. तो बताओ आंसर क्या होगा इसका? 64. वेरी गुड. समझ में आ गया? ओके, चलो तो मैं आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ 5 क्वेश्चन का फटाफट. आप सॉल्व करते चलना, आंसर नहीं देना है अभी. आफ्टर 5 क्वेश्चन आप आंसर देना.
ठीक है, अभी सॉल्व कर दे चलो। के बाद yes. का रूप से ओपन हाथ ओपन समझी पहले बुलाया परम वेरी गुड। ओके, चेक कर ले आंसर। ओनली 2 स्टूडेंट। ओके, मन गुड। सर अभी तो बोल रहा है कि वो नहीं आ पाएगा। चलो जी, ओके, चेक कर लेते हैं बेटा। बताओ फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट 300 420 डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। 420 ओनली। परम आपका 420 आए। मुझे इसमें ना सब बच्चों का आंसर चाहिए यार। मुझे टोटल बेटा, आप क्लास में कितने स्टूडेंट हो? अभी क्लास में आप प्रेजेंट हो 21 स्टूडेंट्स। मुझे 21 आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, किस किसने आंसर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का आंसर? देख लेते हैं रेशियो क्या बनेगा इसका। 3:4 रेशियो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 300 होगा इसका आंसर। फर्स्ट 300। ओके, परम आप चेक कर लो अपना वैल्यू। सेकेंड का बताओ आंसर। 8 12 18 27। ओके,
ओके, सबका सेम वैल्यू आ रहा है, वेरी गुड। 8, 12, 18 एंड 27। ओके, ये हो गया 2:3, सेकेंड इज 4:6 और सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2:3, थर्ड इज 2:3, मीन्स 2:3, 2:3, 2:3, यही बनेगा क्वेश्चन। मीन्स 8:12:27, 18:27, ये आपका आंसर है क्या? 8, 12, 18, 27। ओके, तो करेक्ट है। थर्ड का बताओ आंसर, थर्ड 3। ओके, 0.2/2 is 0.3/x. ओके, तो आंसर इज 3, करेक्ट है। फोर्थ का आंसर 0.1। ओके, फोर्थ 0.1 होगा बेटा। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.0016, ठीक है, तो ये बनेगा 0.2 इंटू 0.8, नहीं 0.08। ओके, सो आंसर 0.016। 0.016 आंसर है आपका। नहीं, अच्छा, तो मैंने कहीं मिस्टेक किया है। ओ सॉरी 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 सॉरी, 0.04 होगा, तो 0.008 आएगा इसका आंसर। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, 0.008। ओके, अभी सही है आपका। किसने लिखा है 0.08? मानुषी आपने लिखा है बेटा, 0.008 आएगा इसका आंसर। क्लियर? एंड लास्ट वन, फिफ्थ नंबर, 0.1 is to 0.01, proportionate 0.01 is to x, 0.01 upon 0.001 is 0.001 upon x. You get 10. हो, ये सही। देखो इसमें क्या डेसिमल का गेम है पूरा, ध्यान रखना आप, इसको बड़ा शांति से सॉल्व करो। 0.1 is to 0.001, नहीं 0. क्या है क्वेश्चन, 0.1 ओनली है। (0.01) proportionate 0.01 is to x, so 0.1 upon 0.01 equals to 0.01 upon x. So x equals to 0.01 into 0.01 upon 0.1. जब भी डेसिमल आप रिमूव करोगे तो इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, आंसर 10, 1 upon 1000, 1 upon 1000, सो वैल्यू क्या बनेगा 0.001, ये होगा आंसर। समझ गए? 0.001। ओके, क्लियर है ये? अभी मैं पता ऑल 5 कितने बच्चों का करेक्ट है? ऑल 5। किसी का भी नहीं। 4, वेरी गुड, अरे वाह, गुड, ठीक है जी। समझ में आ गया टॉपिक? नो।
नेक्स्ट है इसमें एक आता है, आप सबने ना जब क्लास 1-2 में रहे होगे उस टाइम पे ना एक अपने ना गुल्लक रखते हैं जहां अपने पैसे आप रखते थे, ठीक है ना। उस टाइम पे अभी का पेटीएम आ गया है वो डिजिटल वाला। अदरवाइज जो मिट्टी का होता है ना गुल्लक, उसमें ना अपने 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स रखते थे, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, आप जितने भी स्टूडेंट हो, आई थिंक 2001-2-3 के मॉडल हो गए, 1-2-3 के मॉडल हो गए। आप इस टाइम के ही हो ना मॉडल सारे? हाँ, तो आपने तो मुझे लगता है 1 रुपीज 4 के, ओके हाँ, आपने लगता है मेरे को शायद 1 रुपीज का कॉइन देखा होगा, देखा है ना। 50 पैसे का कॉइन देखा है आपने? 50 पैसे, यस। 25 पैसे, यस। 20 पैसा, नहीं। साक्षी यूज किया है आपने 20 पैसा? आई थिंक यूज नहीं किया होगा आप लोगों ने। मुझे लगता है कि 1 रुपीज के बाद आपने कुछ भी यूज नहीं किया होगा। जस्ट थिंक, ओके, एक्सेप्ट 1 रुपीज, आई थिंक 50 पैसे भी आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा, क्योंकि आप तो जिस टाइम के वो मॉडल, उस टाइम में तो 5 रुपीज का डेयरी मिल्क आता है, ठीक है। 50 पैसे के तो कोई चॉकलेट होता ही नहीं है। अच्छा, प्रणव ने यूज किया 25 एंड 50 पैसे, ठीक है, वेरी गुड। 10 पैसे एंड 5 पैसे, ठीक है। अब मुझे बताना है आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ कॉइन्स, चलो 100 रुपीज, 400 कॉइन्स, 600 कॉइन्स, 800 कॉइन्स, 1000 कॉइन्स एंड 2000 कॉइन्स, ठीक है। मुझे बताओ इसका वैल्यूज क्या होगा, वैल्यूज इन रुपीज। आपके पास 1 रुपीज का 100 कॉइन्स हैं, तो क्या लिखोगे? पहले क्वेश्चन नोट करो, आप पहले सॉल्व करो, आप पहले सॉल्व करो फिर आंसर चेक करते हैं अपने। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में काफी आते हैं ये क्वेश्चन। सबका एक, ओके बेटा। इसलिए यहाँ पर 56 ओके, मुझे बताओ। अच्छा, टोटल 810 रुपीज, ओके। अगर 1 रुपए का 100 कॉइन्स हैं तो कितना वैल्यू बनेगा? आपने प्रणव प्रणव आपने आई थिंक मुझे लगता है 1 पैसा ले लिया। 1 रुपीज 100 कॉइन्स, 100 रुपीज, ओके। 166 किलो हो गए। 50 पैसे का 50 पैसे के 400 कॉइन्स। इसका बड़ा सिंपल फंडा कैसे याद रखो कि अगर मुझे 1 रुपीज बनाना हो, सुनो, नहीं कनिका रॉन्ग है आपका भी। अगर मुझे 1 रुपीज बनाना हो, देखो आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए आपको? 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए आपको? अगर 1 रुपीज बनाना हो तो 2 कॉइन। 25 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए? 4। 20 पैसे के 5, 10 पैसे के 10 एंड 5 पैसे के 20 कॉइन। तो बड़ा अच्छा है, इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, इसको डिवाइड कर दो 4 से, इसको 5 से, इसको 10 से, इसको 20 से, ठीक है। तो क्या होगा? 200 रुपीज, 150 रुपीज, 160 रुपीज, 100 रुपीज एंड 100 रुपीज। ये बनेगा वैल्यू आपका।
समझ गए? टोटल कितना आ रहा है? 0 720 आ रहा है। वो वाला 10 नहीं होगा, किसमें बेटा 10 नहीं होगा? लास्ट इज 10। अच्छा लास्ट इज 10, हाँ नॉट 100, सही है। लास्ट इज 10, ओके। नो तो काउंट कर लो कितना? 1 2 तो 620 रुपीज हो रहा है ना बेटा, 620 रुपीज हो रहा है। चेक करो टोटल वैल्यू 620 है, 720 12, ठीक है, 2 3 1 4, हाँ 720 होगा, सॉरी 720, ठीक है। नो अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, या नहीं? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 1 रुपीज 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसा, 5 पैसा are is in the ratio of 1 4 6 8 10 20. One, 4, 6, 8, 10 and 20. Total amount is 720 rupees. Find the number of coins of 1 rupees, 50 पैसे, 25 पैसे and so on. ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखो आप क्या करो, ऐसा ही कॉलम बना लो, ₹1, 50 पैसे, 25, 20, 10 and 5. No. Number of coins 1x, 4x, 6x, 8x, 10x and 20x. No. अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करो, तो फर्स्ट वाले का क्या लिखेंगे? x अपॉन 1 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस 6x अपॉन 4 प्लस 8x अपॉन 5 प्लस 10x अपॉन 10 प्लस 20x अपॉन 20. This equals to 720 rupees. Okay. X upon 1, 4x upon 2, 6x upon 4, 8x upon 5, 10x upon 10, 20x upon 20 is 720 rupees. तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये? यस, इसका पप्पू मेथड क्या है बेटा, कि जो एग्जाम में ऑप्शंस होंगे ना, ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन से जाना बेस्ट मेथड है इसका। ओके, और ये तो मैंने टोटल 6 पॉइंट्स का लिया है। जनरली एग्जाम में वो 2 और 3 पॉइंट्स देंगे आपको, 2 और 3 पॉइंट्स। ओके, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 1 रुपीज 50 पैसे, 25 पैसे are in the ratio of 1 मिनट रुको, क्वेश्चन क्रिएट करने दो यार।
5, 6, and 8. Five, 6, 8. Total amount is 420 rupees. Okay. Find number of coins of each type. Okay. ओके, सी आ गया, ठीक है। वेरी गुड, करेक्ट है, नन ऑफ दी जाएगा इसका आंसर। So 10x equals to 420, x equals to 42. Okay, so 42 into 5, ठीक है, सही है, सही है, आपने फर्स्ट टू वैल्यू देखा, सही किया। तो 210, 42 into 6 is 252 and 8 is 336. Okay, option none of these. समझ में आ गया मेथड से? नो, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 पैसे 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा are in the ratio 1:2:3. Total value is 30 rupees. Find the number of coins of 5 paisa. वैल्यू एक ही दिया है मैंने बेटा, वैल्यू 30 रुपीज दिया है मैंने। अच्छा 16 आ गया।
चेक कर लेते हैं। 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। तो मुझे ये बताओ 1 रुपीज बनाने के लिए 25 पैसे कितने पॉइंट चाहिए आपको? 4, x/4। 10 पैसा 1 रुपीज के लिए कितने पॉइंट्स? 2x/10 एंड 5 पैसा 3x/20। टोटल 30 रुपीज। LCM 30। next is LCM 20 होगा। हाँ तो 4, 5 ओके लिख रहे हैं, मैंने मिस्टेक किया क्या? 4x हो जाएगा यहाँ पे 10 to 4x 20 means 3x and now 12x equals to 30 into 20. So x is 6 to the 12, 6, 5 to 10. X equals to 50. Okay, x is 50. ठीक है, तो 5 पैसे कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? 150 पॉइंट्स। आंसर 150 पॉइंट्स। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक। ओके, आप एक्सरसाइज बेटा होमवर्क एक्सरसाइज 12 एंड 13 एक्सरसाइज 12 एंड 13 ये सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, ओके तो मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे। मेरा ऑलरेडी हो गया है, तो मैं रिपीट करूँ या फिर अरुण शर्मा से करूँ? तो अरुण शर्मा से कर लो मन आप, कोई दिक्कत नहीं, अरुण शर्मा करो, अच्छी बात है। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। Oh.